Hello students, my name is Dr. Ravi Bogna. I have done PhD from HNB Goodall University, qualified NET in 2014, and I have also done B.Ed from Kurukshetra University. Today I will teach you the determination of equilibrium exchange rate of class 12th. I have already explained many topics like foreign exchange rate, relationship between demand and foreign exchange rate, relationship between supply and foreign exchange rate. You can see all these videos in my YouTube channel. Now today the very important topic, that is determination of equilibrium exchange rate. Determination. This is the topic, determination of equilibrium exchange rate. How we can define determination of equilibrium exchange rate? Determination of equilibrium exchange rate, how we can define? So first of all, I am telling you what is equilibrium exchange rate, किसे कहते हैं. तो लिखिए, please write down. Equilibrium exchange rate is determined at a point. Equilibrium exchange rate. Equilibrium exchange rate is determined at a point. Is determined at a point where demand for and supply of foreign exchange rate, where demand for and supply of foreign exchange are equal. Where demand for and supply of foreign exchange are equal is known as equilibrium exchange rate. Once again, equilibrium exchange rate is determined at a point, वो point where demand for and supply of foreign exchange are equal. So we can represent here R is equal to function of demand and supply. So what we have to write? We have to write that exchange rate R is a function of exchange rate R is a function of, जो exchange rate R है वो किसका फंक्शन है? इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ. इट इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी So you have seen that equilibrium exchange rate is determined at a point where demand for and supply of foreign exchange rate are equal. R is equal to function demand supply. Exchange rate R is a function of demand for and supply of foreign currency. It is a function of demand for and supply of foreign currency. Now this is the one marks definition which basically comes in the CBSE board. 1 marks definition you have to write, but if it will come 3 and 4 marks, then you have to explain in very proper manner. So I have already explained what is equilibrium exchange rate. Now the exchange rate, इसको हम इसको पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं. देखिए, द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, the exchange rate at which demand for foreign currency, is equal to supply of what you can say is equal to supply, is known as is equal to supply of foreign currency, equal to supply is known as par rate of exchange, is known as par rate of
एक्सचेंज बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, पार रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, इज नोन एज पार रेट ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए हम इसको एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, इसको पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। मीन्स द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई इज नोन एज पार रेट ऑफ एक्सचेंज। ओके, नाउ इसको हम इट कंस्टिट्यूट्स द नॉर्मल रेट ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं इसको बोलते हैं इट आल्सो नोन एज इट कंसिस्ट, ये क्या करता है, कंसिस्ट इट, ये हम कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज नॉर्मल रेट ऑफ एक्सचेंज इक्विलिब्रियम रेट, इट आल्सो नोन एज नॉर्मल रेट ऑफ, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ इक्विलिब्रियम रेट, नॉर्मल रेट ऑफ इक्विलिब्रियम rate. So student, it is also known as par rate of exchange, it is also known as normal rate of equilibrium rate. Very important. इसको हम par rate of exchange भी बोलते हैं, इसको हम normal equilibrium rate भी बोलते हैं। अब आइए हम इसको थोड़ा सा और जरा अब डायग्राम से हम इसको समझाएं कि ये क्या कहना चाह रहा है, कहाँ इक्विलिब्रियम होगा, कहाँ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होगा। नाउ वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम in very proper manner. Now first of all what, देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, this is O, this is X and this is Y axis, this is supply curve, this is demand curve, and student this is the equilibrium point, this we call what, equilibrium point, this is R and this is Q here, okay, and we can say here R1, let's suppose that rate of exchange when it will be more, and let's suppose that this is what, R2 this like in this way. तो दिस इज ओ क्यू, हमने बताया ये इक्विलिब्रियम रेट है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में होते हैं, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम रेट। अब इसको समझाते हैं आपको, डिमांड और जो सप्लाई है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मेजर्ड ऑन, देखिए इसमें डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ, जो डिमांड है और जो सप्लाई है किसकी, फॉरेन एक्सचेंज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर डिटरमाइंड ऑन एक्स एक्सिस। देखिए डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर डिटरमाइंड, जो डिमांड एंड सप्लाई है फॉरेन करेंसी की हम उसको एक्स एक्सिस में शो करेंगे। दोबारा समझ लीजिए, जो डिमांड एंड सप्लाई है हम इसको मेजर करेंगे एक्स एक्सिस में, वो एक्स एक्सिस में हम इसे मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस में हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है। अब आइए इधर, जो हमें ये डी डी शो कर रहा है, डी डी क्या शो कर रहा है, ये रिप्रेजेंट द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, रिप्रेजेंट द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रिप्रेजेंट्स द डिमांड कर्व, रिप्रेजेंट द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ओके। अच्छा एस एस क्या शो कर रहा है, अगर हम एस एस की बात करें, एस एस शो कर रहा है सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ओके। ये डी डी कर रहा है, ये डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज शो कर रहा है जो कि डाउनवर्ड शो कर रहा है, ये एस एस जो कर रहा है सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज शो कर रहा है, ये कि अपवर्ड शो कर रहा है, ठीक है। अब जहाँ डी डी और एस एस, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूँ जरा, ना आप देखिए जहाँ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर करेंगे, डी डी डिमांड कर्व एंड एस एस कर्व इंटरसेक्ट्स, जहाँ पे वो आपस में मिलेंगे, इंटरसेक्ट्स करेंगे एट द पॉइंट ई, एट द पॉइंट ई विच डिटरमाइंस इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, विच डिटरमाइंस इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एट ओ आर, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एट ओ आर। तो हमने ये देखा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या है, ओ आर है, और तो वी हैव फाइंड दैट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या हो गया,
इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या हो गया, वो हो गया OR। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम हमने बता दिया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात करें तो वो क्या हो गया, OQ हो गया। क्वांटिटी क्या हो गया, OQ हो गया। देखिए ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हो गया और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया। और जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में मिलती है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। मैंने बच्चों को बता दिया, यहाँ पे बोलते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बोलेंगे, इसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलेंगे, क्योंकि दोनों आपस में मिल रहे हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स, अगर ये इफ यू विल गेट 3-4 marks, definitely you can write in very proper manner. But if it will come in only 1 mark, you have to write only definition, then you have not explained this thing. So you have to explain this question according to the marks of CBSE and ICC. And this question is very important for those who are preparing for Kendriya Vidyalaya, those who are preparing for Navodaya Vidyalaya, Uttarakhand Public Service Commission, Bihar Public Commission, and those who want to become professor in universities. These topics are very important. These are the basic topic. Your basic topic should be clear. Thanks, Dr. Vibhavna.